Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all know, we have completed first 4 chapters from our science textbook and I hope you all have updated the first 4 chapters in your notebooks and textbooks as well. Today we are going to start with chapter 5 and name of our chapter is Separation of Substances. So I request all of you to open your textbooks and come on chapter number 5 so that we can start with the explanation. In our chapter 5, we are going to understand about the separation of the substances, like separating tea leaves from liquid with the help of strainer. This means whenever your mother prepares tea, she uses strainer for the same and she separates tea leaves from that liquid. So you can see that tea, that is useful component which we drink, whereas tea leaves, that is non-useful components, we do not eat tea leaves, we throw them away. Whenever your mother strains tea, you all must have noticed that she throw away those tea leaves because they are of no use, and the tea, which is liquid, that is being consumed. Whereas the process of churning curd to get butter, makhan and lassi, this is also known as separation of substance. That is, similarly, example of cotton ginning, which we studied in chapter 3. Before getting cotton, the seeds are separated from the fibers, then we gain or obtain the cotton. So after churning it, we get or we obtain makhan as well as lassi, and both are helpful to us. Makhan is useful component. Many people prefer to put makhan in their dal or they used to apply it on parathas, and whereas lassi or we can say buttermilk is also consumed by all of us. Let me give you one more example, that is grains are being separated from stalks of plant. That means the grain which we use to consume in our day-to-day life, they are being separated from the stalks. The grain which we obtain is consumed by us, whereas the stalks are helpful for animals, that is we feed those to animals so that they can fill their stomach. ग्रेन्स में से जो हम जब ग्रेन्स अलग करते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं वो हम खाते हैं, बट जो घास जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है दैट इज़ नोन एज स्टॉल्क्स, वो हम क्या करते हैं एनिमल्स को खिला देते हैं, एनिमल्स उसको खाते हैं, उनका भी पेट उससे भरा रहता है. So separation of seeds is separating a substance to get a cotton fiber. Talking about you kids, you all don't like some of the vegetables or something which your mother cook. Then what you do, you separate that from your vegetable or from that food item. For example, some of you do not like brinjal. अगर आपकी मम्मी ने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है तो आपको बैंगन अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या करते हो, बैंगन अलग रख देते हो और आलू लेके खा लेते हो, बिकॉज यू ऑल लव पोटैटो. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. I hope you all are clear with the process of separation of substance. Chapter number 5 on page number 35 is separation of substances. Separation का मतलब होता है किसी चीज़ में से कोई चीज़ को अलग करना. जब हम कोई चीज़ अलग कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं सेपरेट. सो नेम ऑफ योर चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. मतलब हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सी जगह पे ये चीज़ देखते हैं कि किसी चीज़ में से किसी और चीज़ को सेपरेट किया गया है. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. This means when your mother prepares tea, she used to take a strainer and separate tea leaves from the tea. आपकी मम्मी जब भी घर पे चाय बनाती है तो वो चाय छानती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनर.
उसमें वो क्यों ऐसा करती है, ताकि जो चाय की पत्ती है वो अलग हो जाए और चाय अलग हो जाए. सो दिस इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. यू कैन लुक इन द फिगर 5.1. Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the buttermilk. As we learned in chapter 3, we gain cotton to separate its seeds from its fiber. This means कि जब भी हमें grains चाहिए होते हैं, अनाज के दाने चाहिए होते हैं, तो वो farmers क्या करते हैं, उसको harvest करते हैं और उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. जब हमें मक्खन चाहिए होता है, दैट इज़ बटर, तो हम क्या करते हैं, जो दूध होता है उसकी जो ऊपर की मलाई होती है उसको क्या करते हैं, चर्न करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, बॉईल करते हैं, फिर हमें उससे क्या मिलता है, बटर मिलता है, मक्खन मिलता है. और हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, अगर हमें कॉटन चाहिए तो हम क्या करते हैं, कॉटन की सीड्स को सेपरेट करते हैं उसके फाइबर्स में से, और फिर हमें क्या मिलता है, कॉटन. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर नोन एज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. मतलब हमने सब्सटेंस को सेपरेट कर दिया टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. आप लोगों ने सबने नमक वाला दलिया या पोहा तो खाया ही होगा. बेसिकली पोहा आप लोग सब नाश्ते में खाते हो. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. अब जब आपकी मम्मी पोहा या दलिया बनाती है तो उसमें वो क्या डालती हैं, ग्रीन चिलीज़. और आपको सब मोस्टली बच्चों को ग्रीन चिलीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो आप लोग क्या करते हो, वो ग्रीन चिलीज़ को खाने में से अलग कर देते हो, बाहर निकाल देते हो. तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. दिस मीन्स आपने उस खाने में से कोई एक सब्सटेंस सेपरेट कर दिया, और वो सब्सटेंस क्या था, ग्रीन चिली. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? अगर आपको एक बास्केट दे दूँ मैं, जिसमें मैं गुआवास भी डाल दूँ और मैंगोज़ भी डाल दूँ, और फिर मैं आपको बोलूँ कि आप इसे सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप एक और कोई बास्केट या कंटेनर लाओगे. फिर जो भी, जैसे आपको गुआवा पहले वाले बास्केट में रखने हैं तो आप दूसरी वाले बास्केट में क्या करोगे, मैंगोज़ निकाल के रखते जाओगे. तो ये हमने क्या किया, गुआवा और मैंगो को सेपरेट किया, अलग किया. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? अब मैंगो और गुआवा तो साइज़ में कैसे होते हैं, बड़े, इसलिए हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं. पर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत छोटी हो साइज़ में, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं. इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. This means, सपोज़ मैंने आपको एक ग्लास दिया है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, और अगर मैंने उसमें सॉल्ट मिला दिया तो क्या आप मिट्टी और सॉल्ट को अलग अलग कर पाओगे? आंसर इज़ नो. वी कांट इवन इमेजिन कि हम मिट्टी और नमक को अलग अलग कर पाएँ. हम एक एक मिट्टी का पत्थर या मिट्टी जो होती है उसको सॉल्ट से अलग नहीं कर सकते हैं. एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each processes with its purpose and the way separated components are used? This means that 5.1 दिया गया है जिसमें अलग अलग processes separation के बताए गए हैं, जिसमें हमने वो चीज़ क्यों सेपरेट की है और क्या तरीके से सेपरेट की है वो कॉलम 2 और 3 में बताया है. पर कॉलम 2 और 3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, जम्बल अप हो गई है. तो अब हमें क्या करना है, अब उसे हमें अलग करना है और देखना है कि कौन सा वाला किस चीज़ के लिए करेक्ट है. एक्टिविटी 5.1 आगे समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल. सबसे पहला है सेपरेशन प्रोसेस.
Next column is purpose for which we do the separation, and the third one is what do we do with the separated components. मतलब सबसे पहला है कि सेपरेशन का प्रोसेस कैसे रहता है, फिर है कि सेपरेशन हम कैसे करते हैं, और थर्ड है कि जो चीज़ हमने सेपरेट कर दी उसका क्या यूज़ होता है. फर्स्ट वन इज़ सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. सबसे पहला है कि हम जब चावल बनाते हैं या आपकी मम्मी जब चावल बनाती है तो उसको एक बार चेक करती है कि उसमें स्टोन्स तो नहीं हैं. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. क्या पत्थर ज़रूरी है? अगर आप राइस में से पत्थर निकाल रहे हो तो वो राइस तो आप बना के खा लोगे, पर आप पत्थर का क्या करोगे? पत्थर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. हम क्या करते हैं, जो पत्थर होगा उसको हम फेंक देंगे, पर राइस होता है वो भी पहले सॉलिड ही होते हैं, तो हम राइस नहीं फेंकेंगे पर पत्थर जो है वो फेंक देंगे. इसको अरेंज पहले मैं समझा देती हूँ और फिर हम इसको अरेंज करते हैं. नेक्स्ट इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. दैट इज़ हम मिल्क को चर्न करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, बटर. टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स. क्या ये चीज़ उसमें आएगी कि हम उसमें से जो उसके कंपोनेंट्स है उसको हटाएं? दैट इज़ नो. हमें क्या मिलेगा, दोनों ऐसी चीज़ मिलेगी जो दोनों हमें यूज़फुल हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे. वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स. नेक्स्ट इज़ सेपरेट टी लीव्स. अब जो टी लीव्स है, जो मैंने आगे आपको समझाया, चाय में से हम क्या करते हैं, चाय की पत्ती निकाल देते हैं और हम क्या कंज्यूम करते हैं, सिर्फ चाय. और चाय की पत्ती हमारे काम आती है? नो. हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं. नाउ लेट मी अरेंज एंड वंस अगेन आई विल रीड इट आउट फॉर यू ऑल. थर्ड कॉलम में मिक्सअप हो गया था, वो अब मैंने सेग्रीगेट कर दिया. लुक, द फर्स्ट वन सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. सेकेंड वाले कॉलम में इसका आएगा टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स. मतलब हम वो ग्रेन्स में से हार्मफुल कंपोनेंट्स या फिर इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं ताकि हमारी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो. और थर्ड वाले कॉलम में आएगा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. अगर हम पत्थर निकाल रहे तो वो कैसे होते हैं, सॉलिड, क्योंकि हम उसे प्रेस नहीं कर सकते, तो हम वो पत्थर क्या करते हैं, फेंक देते हैं. नेक्स्ट, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मतलब जब हम दूध को मिक्स करते ताकि हमें मक्खन मिल सके. सो इसका आंसर होगा सेकेंड कॉलम में टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. अगर हम दूध में से मक्खन बना रहे हैं तो उसमें से हमें लस्सी भी मिलेगी, वो दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें ये आंसर है. और थर्ड वाले कॉलम में है वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, और हम मक्खन एज वेल एज लस्सी दोनों यूज़ करते हैं. वाइल थर्ड वन इज़ सेपरेट टी लीव्स. दैट इज़ कि हम चाय पत्ती चाय में से अलग करते हैं. तो जो यूज़फुल चीज़ होती है वो हम क्या करते हैं, कंज्यूम, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं. सो सेकेंड वाले कॉलम में से आएगा टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. मतलब जो टी लीव्स है वो क्या है, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, उसे हम हटा देंगे. और थर्ड वाले कॉलम में होगा वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, और जो हमने इम्प्योरिटीज़ अलग की उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे. आई होप दिस टेबल इज़ क्लियर टू यू. We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. अब हमने देखा कि हम जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हम क्या करें, उसके हार्मफुल और जो चीज़ें जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है उसको क्या करें, अलग, ताकि वो काम की चीज़ से मिक्स ना हो जाए. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. और कभी कभी हम अलग अलग चीज़ों को बहुत अलग अलग भी सेपरेट करते हैं और बहुत ध्यान से सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमें वो दोनों चीज़ें अलग अलग यूज़ करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल लस्सी एंड बटर, मक्खन और लस्सी, हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम बहुत ध्यान से उसको अलग करते हैं ताकि हम दोनों यूज़फुल में रख पाएँ. The substances to be separated may be particles of different size or materials. जो हमने अलग सब्सटेंस किए वो हो सकता है कि अलग अलग साइज़ के हों या अलग अलग फॉर्म में हो. These may be in any three state of matter. ये तीन कोई भी स्टेट में हो सकते हैं मैटर के. They can be either solid, liquid or
gaseous. So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? पर अगर substances में बहुत सारी अलग अलग properties है तो हम उनको कौन कौन से processes से अलग कर सकते हैं? I hope you all are clear till this topic on page number 36. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने अलग अलग सब्सटेंसेस कैसे सेपरेट होते हैं वो पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल द एक्सप्लेनेशन वी हैव डन टुडे. Thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself. Bye.